Honorable President, Srimati Draupadi Murmuji, respected Sri Ramnath Kovindji, Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Speaker of Lok Sabha Sri Om Birla ji, Chief Justice of India Sri N.V. Ramana ji, respected parliamentarians, other dignitaries, brothers and sisters, and my dear fellow citizens, Namaskar. Madam President, you have just addressed the members of the Parliament. I wish to read a few paragraphs from the English version of the address, and the rest may be considered as read in view of the time constraint. I express my heartfelt gratitude to all members of Parliament and legislative assemblies for electing me to the highest constitutional post of India. Brothers and sisters, we have to work at a fast pace in this Amrit Kal to fulfill the expectations of our freedom fighters from the citizens of independent India. In these 25 years, the path to attain the goals of Amrit Kal will proceed on two tracks, Sabka Prayas or Sabka Kartavya, everyone's efforts and everyone's duty. The new development journey towards the bright future of India has to be undertaken by our collective efforts following the path of duty. We will be observing Kargil Vijay Divas tomorrow, July 26th. This day is a symbol of both the bravery and the restraint of the Indian armed forces. Today, I extend my best wishes in advance to the armed forces of the country and to all the citizens of India. Brothers and sisters, growth and progress mean continuously marching ahead. But equally important is awareness about one's past. Today, when the world is talking about sustainable planet, the role of India's ancient traditions and sustainable lifestyle becomes more important. I was born in the tribal tradition which has lived in harmony with the nature for thousands of years. I have realized the importance of forests and water bodies in my life. We take necessary resources from nature and serve nature with equal reverence. This sensitivity has become a global imperative today. I'm happy that India is guiding the world in the field of environmental protection. Brothers and sisters, in my life so far, I have realized the meaning of life only through public service. There is a line from the poem of Bhim Bhoi Ji, a famous poet of Sri Jagannath Kshetra. Mo jibana bacche, narke paditav, jagata uddar hev. That is, working for the welfare of the world is far greater than one's own interest. With the spirit of welfare of the world, it always be ready to work. All of us, with full devotion and dedication, to live up to the trust you all have reposed in me. Let us all unite and move forward on the path of duty with a dedicated spirit to build a glorious and self-reliant India. Thank you. Jai Hind. राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए।
तो आखिरकार देश को 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू मिल चुकी हैं और अपने देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं देश की ऐसी पहली महिला राष्ट्रपति हूं जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ। मैं जनजातीय समाज से हूं और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। और इस संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए बहुत संतोष की बात है जो सदियों से वंचित रहे, जो विकास के लाभ से दूर रहे, वो गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी मुझ में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने करगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी देश के जवानों को दी। मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा लेना सपने जैसा था, उन्होंने इस बात का जिक्र करा और वही जिक्र जो हम बार बार आप तक ये खबर पहुंचाने के लिए करते आए कि किस तरह से उनके लिए शिक्षा को हासिल करना बेहद मुश्किल रहा, लेकिन उन्होंने अपने सपने को कभी भी किसी मोड़ पर चकनाचूर नहीं होने दिया। बिल्कुल सबीना, आप और हम लोग लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे थे शपथ ग्रहण से पहले कि कितना मुश्किल सफर रहा होगा, और इस बात का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में कर दिया कि सबसे मुश्किल था शिक्षा लेना, और शिक्षा लेने के बाद शिक्षक के तौर पर बनना ये तो और ज्यादा कठिन रहा होगा, ये तो और ज्यादा टफ रहा होगा उनके लिए। और फिर लोगों को शिक्षित करना। जहां बहुत मुश्किल होता है लोगों को क्लास तक लाना, उनको शिक्षा देना, मगर उन्होंने किया। और आज देखिए उन्होंने शपथ ले लिया है और 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने अब से चंद मिनटों पहले शपथ लिया और उसके बाद उन्होंने संबोधन दिया देश के नाम, और तमाम बातों का जिक्र करते उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि उनके गांव से वो पहली महिला हैं जो यहां तक पहुंची हैं। शिक्षा को लेकर के वो काम लगातार उन्होंने किया है और वही तस्वीर आगे भी उनके लोग उम्मीद कर रहे हैं कि देखते और एक नए अध्याय की शुरुआत यहाँ पर अब हो चुकी है। वो नया अध्याय जो द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर लिख दिया है और अभी अपने कार्यकाल के दौरान यहाँ पर लेना बाकी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा अपने संबोधन के दौरान कि भारत में अब गरीब तबका भी सपने देख सकता है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की महानता है, ये लोकतंत्र की महानता है कि एक आदिवासी परिवार की बेटी को, एक आखिरी पंक्ति में मौजूद बेटी को इस तरह से राष्ट्रपति की भूमिका में अब यहाँ पर पूरा देश देखेगा। इसके लिए उन्होंने पूरे देश का शुक्रिया अदा भी किया, देशवासियों को धन्यवाद भी यहाँ पर किया और साथ ही बताया कि कितना मुश्किल भरा ये सफर था। उस संघर्ष का जिक्र किया जो हमने आप तक पहुंचाया, जिन निजी कहानियों के जरिए हमने आप तक पहुंचाया कि किस तरह से वो आम से बेहद खास बन गई और साथ ही मिसाल यहाँ पर कायम अब कर चुकी हैं। देखिए सबीना, जिस कठिन दौर की हम बात कर रहे थे, जिस कठिन परिश्रम की बात कर रहे थे, जिस कठिन संघर्षों की हम बात कर रहे थे, उसका जिक्र महामहिम ने अपने संबोधन में भी किया कि कैसे उन्होंने आगे बढ़कर तमाम दुश्वारियां झेलते हुए वो खुद आगे बढ़ी और यहाँ तक पहुंची हैं वो देश के सर्वोच्च पद पर। यही बार बार जिक्र हम लोग लगातार कर रहे थे। और जब आप उनके इस पूरे जीवन को देखेंगे, यहाँ तक के सफर को देखेंगे, शून्य से शिखर तक के सफर को देखेंगे, तो आपको ये महसूस होगा, आपको ये एहसास होगा कि कितना कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है। कठोर परिश्रम की बदौलत वो यहाँ तक पहुंची हैं और आज उन्होंने शपथ लिया है। आगे की तस्वीर आप देखेंगे कि रामनाथ कोविंद जाएंगे, उनको राष्ट्रपति भवन तक छोड़ेंगे, वहां उनको नमस्ते करेंगे और फिर वो वापस होंगे और वो राष्ट्रपति भवन की तरफ चली जाएंगे, यानी राष्ट्रपति भवन में चली जाएंगे। क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल होता है जो अभी हमें तस्वीर देखने को मिलेगी। इस दौरान मुलाकातों का दौर भी चल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, तमाम मंत्री वहां पर मौजूद हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहां पर मौजूद हैं और साथ ही सीजेआई एनवी रामना वहां पर मौजूद हैं जिन्होंने शपथ दिलाई अब से चंद मिनट पहले। अब सबीना, एक बड़ी बात यह है कि हम वो तस्वीर देखेंगे जिसका इंतजार था कि वो राष्ट्रपति भवन में कब जाएंगे। हालांकि वो गई थी लेकिन स्वागत उनका हुआ था रामनाथ कोविंद ने किया था। अब वो जब शपथ लेने के बाद जा रही हैं तो वो राष्ट्रपति के तौर पर जा रही हैं और रामनाथ कोविंद उनको वहां तक छोड़ेंगे और फिर वो वापस हो जाएंगे, वो राष्ट्रपति भवन में चले जाएंगे। और जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था रंजीत कि ये शून्य से शिखर तक का सफर है, वो शानदार सफर है जो हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। और देखिए, देश के नाम अपने पहले संबोधन में जिस तरह से राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह बात कही कि गरीब तबका भी अब सपने देख सकता है, गरीब तबका भी अपने उस सपने को पूरा कर सकता है। ये बहुत बड़ी लॉ उन्होंने हर उस इंसान की जिंदगी में जगाई है जो खुद को आर्थिक तौर पर कमजोर होने के बाद सपने देखना छोड़ देता है या संघर्ष की राह पर आगे नहीं बढ़ पाता है। एक बड़ा संदेश उन्होंने अपने इस नाम, जो देश के नाम संबोधन दिया, उसमें देशवासियों को दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से आजाद भारत में जन्मी वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, जानती हैं वो कि उनका सफर किस तरह से महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, किस तरह
से वो न सिर्फ एक मिसाल कायम करने वाली एक बहुत बड़ी शख्सियत इस वक्त बन चुकी हैं, बल्कि वो ये भी जानती हैं कि उनके एक एक शब्द अब राष्ट्र के जन जन तक पहुंचेंगे। इसलिए बेहद शानदार तरीके से उन्होंने अपने शब्दों को पूरा पिरोया और करोड़ों देशवासियों के सामने अंजीत यहां पर रखा, जिसके अपने आप में मायने यही है कि आज एक नए अध्याय की शुरुआत अब हो चुकी है इस वक्त से। बिल्कुल, ये नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है और जो नए अध्याय की शुरुआत हुई उसका गवाह ये पूरा देश बना। पूरे देश ने आज देखा कि कैसे सेंट्रल हॉल में ये पूरा का पूरा शपथ ग्रहण समारोह हुआ और गाड़ियों के निकलने का भी धीरे धीरे सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से थोड़ी देर बाद पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल से द्रौपदी मुर्मू निकलेंगी और राष्ट्रपति भवन जाएंगी, जहां राष्ट्रपति भवन उनका इंतजार कर रहा है। क्योंकि ये खास मौका इसलिए भी है क्योंकि जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले रही थी उसके बाद उन्होंने जो संबोधन दिया, उन्होंने तमाम अपने संघर्षों का जिक्र किया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि देश का कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। हालांकि बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि वो ऐसी आदिवासी महिला है जो देश की पहली राष्ट्रपति बन रही हैं, लेकिन इस दौरान आदिवासी महिला होने के साथ साथ आप उनके संघर्षों को देखिए, आप उनके मेरिट को देखिए कि कैसे उन्होंने शिक्षक के तौर पर क्लर्क, फिर शिक्षक और फिर लगातार वो काम करती रहीं, कैसे उन्होंने काम किया और उसके बाद वो यहाँ तक पहुंची हैं। तो इसलिए ये जिक्र करना बेहद जरूरी है, जिसका जिक्र वो खुद कर रही थी कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई भी सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। जाहिर तौर पर उन्होंने प्रेरणा देने की कोशिश की है, सबीना, संदेश एक देने की कोशिश की है कि आने वाले वक्त में अगर समस्याएं आती हैं तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, उससे सीखने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। और जानती हैं बखूबी इस बात को द्रौपदी मुर्मू जानती हैं कि एक गरीब तबका, एक दलित तबका, आदिवासी तबका आज भी अपनी सुविधाओं के लिए, अपने अधिकार के लिए कहीं ना कहीं इस दौड़ में शामिल है। उनके सपने पूरा करने की किस तरह से राह को आसान किया जा सकता है। अपने संबोधन में उन्होंने वो तमाम शब्द कहे जहां पर उन्होंने ये कहा कि गरीब तबका, गरीब परिवार भी सपने देख सकता है, उन्हें पूरा कर सकता है, क्योंकि वो खुद उस दौर से गुजरी हैं। उन्होंने खुद उस माहौल को, उस दर्द को यहाँ पर सहा है और ये भी बताया उन्होंने कि प्रारंभिक शिक्षा मेरे लिए ग्रहण करना कितना मुश्किल था। आप इस शब्द के मायने समझिए। अगर उन्होंने अपनी जिंदगी के निजी पहलू यहाँ पर रखे सामने तो ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि इन्हीं निजी कहानियों से किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी की वो हकीकत यहाँ पर सही वो देखी, जो आज एक मिसाल के तौर पर पूरे राष्ट्र के सामने आ चुकी है, पूरी दुनिया के सामने कही जा सकती है। क्योंकि बात सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं है, बल्कि जिस तरह से बधाइयों का तांता विदेशी जमीन से भी लगा, उसने बता दिया कि द्रौपदी मुर्मू को जानने की कोशिश आज पूरी दुनिया यहाँ पर कर रही है। बिल्कुल, और यही बात है जो उन्होंने जिस बात का जिक्र किया कि प्रारंभिक शिक्षा लेने में उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये वो शुरुआत थी, ये वो शून्य से आगे बढ़ने की शुरुआत थी जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो रही थी और उस दौरान समस्याएं आ रही थी। लेकिन तब से लेकर के अब तक देखिए, उन्होंने कभी ना पीछे मुड़ के देखा, न कभी ज्यादा सोचा, सिर्फ वो आगे बढ़ती गई और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज वो इस पद तक पहुंची हैं। सोचिए, जिसकी शुरुआती शिक्षा में ही दिक्कत हो, वो आगे बढ़ने के तौर पर कैसे काम कर रहा होगा, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, पूरी पढ़ाई की और उसके बाद वो क्लर्क बन गई। उसके बाद और ज्यादा उन्होंने काम किया, फिर वो शिक्षक के तौर पर काम करने लगी, उसके बाद वो विधायक बनी। लेकिन इस दौरान हमने देखा है सबीना कि आप विधायक तो बन सकते हैं, उसमें कोई क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन इसलिए मायने रखती है क्योंकि एक शिक्षक के तौर पर भी उन्होंने काम किया, लोगों को शिक्षा देने का काम किया। लिहाजा प्रारंभिक शिक्षा लेने में उनको समस्या तो हुई, लेकिन वो उस समस्या को लगातार जूझती रही उस समस्या से और आगे बढ़ती रही और यही वजह रही कि वो शिक्षक भी बनी, क्योंकि पढ़ाई पूरी उन्होंने कंप्लीट की और उस जगह से उन्होंने पढ़ाई पूरी की जहां से, सोचिए कि जहां से शुरुआती शिक्षा लेने में दिक्कत होती हो, वहां पर बड़ी पढ़ाई कर लेना, शिक्षक बन जाना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल है और हमने जो देखा वो तस्वीर बयां कर ली। देखिए, अपने उस गांव से, ओडिशा के मयूरभंज जिले में मौजूद उस छोटे से गांव से जहां पर दूर दूर तक किसी तरह की सुविधा नहीं रही, जिसमें शौचालय का अगर जिक्र करें तो ये अभिशप्त के तौर पर यहां पर हमेशा से नजर आया, जहां पर इंसानी जिंदगी को जीना सबसे मुश्किल रहा, जहां राजनीति से कोसों दूर किसी का ताल्लुक नहीं रहा। खासतौर से अगर ऐसे में उस समाज की बेटी ये सोचे कि मुझे चार दीवारी से बाहर निकलकर अपनी शिक्षा पूरी करनी है, मुझे प्रारंभिक शिक्षा के साथ माध्यमिक
माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए रमा देवी विश्वविद्यालय तक यहाँ पर पहुंचना है। तो आप खुद सोचिए वो लड़ाई, वो संघर्ष कितनी बड़ी रही होगी, खुद से, समाज से, आर्थिक परिस्थितियों से, उन हालातों से जिनसे गुजरकर आखिरकार आज वो महामहिम के पद पर काबिज हो चुकी है, देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बन चुकी है, 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर यहाँ पर सामने आ चुकी है। संघर्ष की कहानी यहाँ पर भी नहीं रुकी, अपने पति को, अपने जीवन साथी को खो दिया, अपने 2 बेटों को खो दिया, हालांकि उनकी एक बेटी भी है, लेकिन वो दर्द यहाँ पर सामने आया जिसमें डिप्रेशन में भी जाते जाते वो बची, या फिर यूं कहिए कि खुद को एक पल उन्होंने इतना मजबूत कर लिया अंजीत कि वो समझ गई कि ये निजी जिंदगी ही उन्हें अब समाज के लिए, देश के लिए अग्रसर करेगी।